Dholera, India's own global smart city. Strategically located in Gujarat, one of the most progressive states of India, Dholera is situated on the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and connected to the dedicated freight corridor. Dholera boasts of a 360-degree connectivity through upcoming projects like 4-lane expressway between Ahmedabad and Dholera, MRTS, Bhimnath Dholera Freight Rail Line and Dholera International Airport. SCADA-enabled smart water management system and comprehensive solid waste management system has been set up at Dholera along with storm water management, water treatment plant, common effluent treatment plant and sewage treatment plant, which will ensure availability of potable water and treated water for industries. L&T has been at the forefront of executing various tough, massive and challenging projects. But what we have seen at Dholera is nothing less than an engineering marvel. Torrent will contribute to the development of Dholera as a truly world-class city by developing state-of-the-art power infrastructure, which will enable us to provide reliable and safe power at one of the lowest power tariffs in the country. At Dholera Park, where there is a huge industrialization which is being planned, along with a very well-planned solar park, is going to make this whole project a unique, not only in this country, but in the world. The infrastructural work is nearing completion in the activation area at Dholera. The administrative and business center for Dholera, that functions as the nerve center, is already operational with smart amenities and will soon accommodate state-of-the-art command and control center and skill development center. Land parcels with plug-and-play setup are ready for allotment with required availability of construction power and water. With this readiness of creating opportunities for New India, Dholera will soon be a home to a variety of dynamic industries from sectors like heavy engineering, automobile and auto ancillary, defense and aerospace, electronics, pharmaceuticals and biotechnology, agro and food processing, and information technology services. Adding to the glory of Dholera, welcoming some of the most reputed universities and colleges from across the world. With a massive magnitude of developmental work taking shape each day, Dholera is turning into a reality and is now ready to welcome you and your aspirations. यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी जाने माने महानुभाव, मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ गुजरात बहुत भाग्यशाली रहा है। यहाँ की जो अलग अलग नीतियाँ हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस प्रकार से अलग अलग उद्योग जगत के साथ नीतियाँ बनी, अभी जगदीश भाई पोर्ट्स के बारे में बता रहे थे। आखिर ये अधिकांश इन पोर्ट्स का जो प्रगति हुई वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुई, जब वो यहाँ पे कारोबार यहाँ के सरकार चलाते थे। जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग उद्योग नीतियाँ आई, जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री ने बताया, अभी सेमीकंडक्टर की पॉलिसी शायद देश में और कोई प्रदेश की इतनी एडवांस्ड, इतनी मॉडर्न और इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी सेमीकंडक्टर की आज तक किसी ने नहीं निकाली। आईटी ये क्षेत्र में भी अब गुजरात इस नई पॉलिसी के साथ मेरा मानना है बहुत तेज गति से विकास करेगा। ऐसे ही जो अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क्स की कल्पना गुजरात ने की है, हाल में ही टेक्सटाइल के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र स्कीम द्वारा मंजूर करने का जब निर्णय लिया, तो जो गुजरात का प्रपोजल आया वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सभी प्रपोजल्स को, और हमने बड़े
बिना कोई भेदभाव के बड़े क्लिनिकली अधिकारियों ने उसको असेस किया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने उसको बड़े प्रोफेशनली अलग अलग मापदंड पे उसको, जब सभी सातों कुछ करीब 13 प्रपोजल आए थे जिसमें से हमें 7 चुनने हैं, सबको असेस किया तो जो नवसारी का प्रपोजल था गुजरात का वो नंबर 1 रैंकिंग में आया. इट वाज द बेस्ट प्रपोजल. अब मेरे पास वो अधिकार तो है नहीं कि मैं आज अनाउंस कर सकूं, पर इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर गुजरात का प्रपोजल इतना अच्छा आया तो वो दर्शाता है कैसे गुजरात तेज गति से अलग अलग क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, विकास करने का काम कर रहा है. धोलेरा की बात देखें तो धोलेरा में सिर्फ मात्र अब जो डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात ने वो कल्पना लेके काम नहीं किया. लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, पूरा एक आगे का 2-3 दशकों तक कैसे धोलेरा में विकास हो सके उसकी कल्पना को लेके ये पहला चरण धोलेरा का अब चालू हुआ है. इसके लिए भी अब नया नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेन का, जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट करेगा. एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेज गति से धोलेरा में चल रहा है. शायद 2024 में दोनों ये प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे. और धोलेरा में अपने आप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग हुई है, जो मैं बाहर देख भी रहा था, जिस प्रकार से हर एक यूटिलिटी पहले से पर्याप्त मात्रा में, चाहे बिजली हो, पानी हो, वाटर रिसाइकल करके यूज़ करना हो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, प्लांट सिटी के रूप में जो धोलेरा की कल्पना की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा भूपेंद्र भाई आपको, जगदीश भाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी सोच के लिए. और ये जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का मैं आगे विचार करता हूँ, जिस प्रकार से मैं अगर एक थोड़ा बहुत भविष्य में क्रिस्टल बॉल गेजिंग करूँ तो क्लियरली आई कैन सी धोलेरा बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स. और मुझे कोई संदेह नहीं है जिस प्रकार से गुजरात प्रगति कर रहा है, धोलेरा उससे भी तेज गति से आगे चल के प्रगति करेगा. मुझे बताया गया है कि शायद ये विश्व का पहला प्लैटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा. अपने आप में ये भी आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है. और मैं समझता हूँ चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग को कंपेटिटिव करने के लिए इकोसिस्टम को सरल बनाने की बात हो, हर एक विषय में गुजरात बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है. हाल में ही हम रेगुलरली स्टेट्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी रैंकिंग करते हैं, उसमें भी गुजरात टॉप ऑनर्स के साथ निकला था. साथ ही साथ जब हम गुजरात के बारे में देखते हैं तो एक गुजरात के धरती में ही कुछ कमाल है और गुजरात के लोगों में एक जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो एक उद्यमिता के प्रति एक लगाव है, उससे भी मैं समझता हूं कि गुजरात का भविष्य बहुत उज्जवल है. जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि हम साइलोस तोड़ के, डिपार्टमेंटल डिविजन्स तोड़ के एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देश के विकास की कल्पना करें, उसका अगर कोई पृष्ठभूमि, कोई एक तरीके से टेस्ट लैब है तो वो गुजरात है. गुजरात में कोई उद्योग लगाना चाहे, कोई नया काम शुरू करना चाहे, कोई यहाँ के रहना चाहे, उसको अच्छे मकान भी मिलेंगे, उसको अच्छी इकोसिस्टम मिलेगी उद्योग लगाने के लिए, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ऑल एप्लीकेशंस मिलेंगे, लगभग हर एक चीज़ ऑनलाइन मिलेगी.
मैंने सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो डैशबोर्ड है वो अपने आप में एक it's a unique dashboard. He can literally monitor right down to the last panchayat every activity that is happening in the state. Complete online system के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी भी है और रेगुलर मॉनिटरिंग भी है. और आप सब उद्योग जगत के लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग करना पड़ता है काम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी पड़ती है. जवाबदेही अगर एडमिनिस्ट्रेशन मिले तो कोई ताकत दुनिया की हमारे बिजनेस को, हमारे व्यापार को और वैसे ही हमारे राज्य को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दे सकती. प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच जो एक तरीके से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रयोगशाला भी की थी, गुजरात में काम भी किया था इस दृष्टिकोण से और अब पूरे देश को उसका लाभ हो रहा है, वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान. मैं समझता हूँ ये एक अद्भुत सोच है. लगभग 1000 के करीब अलग अलग जियो स्पेशल मैप्स बना के देश के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आज देश की फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इन सब का लगभग 927 के करीब मैप्स बने हैं. इसके साथ साथ राज्यों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैप्स उसमें इंटीग्रेट किए जा रहे हैं. लगभग 450 के करीब लास्ट काउंट में राज्यों के भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा इसमें मैप किया गया है. और अब देश की इस पूरी मैपिंग को करने के बाद यहाँ पे ही आपके गुजरात में स्थित है एक वाइजैक जो GIS का काम करती है, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेशल मैपिंग द्वारा उसी ने ये गति शक्ति का मास्टर प्लान, इसकी टेक्नोलॉजी बनाई है. और ये सब मैप्स एक प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. अगर साधारण भाषा में बोलूं तो दे टॉक टू ईच अदर. ना अब कोई मीडिया का मित्र ये ना समझे कि वो वास्तव में बात करते हैं एक दूसरे के साथ. दे टॉक टू ईच अदर इन द सेंस दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. और उसके कारण जो फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा भारत का वो बड़े प्लान्ड तरीके से होगा. उसमें एक छोटा उदाहरण लूं तो वैसे तो आपने सुना है कि एक रोड बनती है, नई रोड बनती है, फिर तोड़ी जाती है वाटर पाइपलाइन लगाने के लिए, फिर तोड़ी जाती है इलेक्ट्रिक लाइन डालने के लिए, फिर कभी तोड़ी जाती है टेलीकॉम केबल के लिए. ऑल ऑफ दिस विल बी हिस्ट्री, ये इतिहास में चले जाएगा. अब जब कोई रोड बनेगी, कोई हाईवे बनेगा तो पहले से ही प्लान किया जाएगा कि कोई रेलवे लाइन आ रही है तो उसका ओवरब्रिज भी साथ में बने. कोई फॉरेस्ट टच कर रहा है तो भाई इसको थोड़ा रूट डाइवर्ट कर दो कि फॉरेस्ट की वजह से प्रोजेक्ट को डिले नहीं होगी. कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आ रही है तो उसको भी स्कर्ट कर देंगे. कोई रिवर आ रहा है, कोई नदी आ रही है तो देख सकते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट स्पॉट है जहाँ छोटे डिस्टेंस का आपको पुल बनाना पड़े. तो थोड़ा सा रीअलाइनमेंट करके, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे पावर की ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे कोई हाईवे बन रहा हो, ये सब चीज़ें और इफेक्टिवली प्लान की जा सकती हैं जिससे टाइम एंड कॉस्ट ओवररन नहीं होगा, समय पे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और इस सब का लाभ अल्टीमेटली भारत की जनता को मिलेगा, आप सबको मिलेगा. आखिर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या सरकारी प्रोजेक्ट डिले होता है तो टैक्स पेयर के पैसे का ही तो दुरुपयोग होता है उससे. और अगर कोई प्रोजेक्ट टाइम पे लगता है तो उसके यूजर चार्जेस, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट, सब कुछ संतुलित रहने के कारण भारत का कंपेटिटिवनेस सुधरती है. और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है ये शायद विश्व में पहली बार ऐसी कुछ चीज़ तैयार की गई है. और आज पूरे विश्व में बहुत इंक्विजिटिवनेस है
इसके बारे में जानकारी लेने की। ऐसे ही एक नेशनल सिंगल विंडो बनाई गई है जिसमें सभी राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है कि जो भी किसी भी प्रकार की अप्रूवल्स इंडस्ट्री को लगती है उसके लिए एक ही जगह पे आपको जाना पड़े, केंद्र की अप्रूवल हो, स्टेट की अप्रूवल हो, और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि लोकल बॉडीज की भी अप्रूवल उसी सिंगल विंडो से आए। और मैं तो चाहूँगा कि आप सब उद्योग जगत के मित्र अगर ये नेशनल सिंगल विंडो पे अपने अपने अप्रूवल्स लेने का काम शुरू करें तो हमें 2-3 लाभ होंगे उसमें, और एक प्रकार से आप हमारे आगे के काम को भी और अच्छा बनाएंगे। एक तो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो अगर उसमें कुछ गलतियां रह गई, कुछ त्रुटियां हैं, अगर कोई डिफिकल्टी आपको महसूस होती है तो आप हमें फीडबैक देंगे तो हम सुधार सकेंगे। अगर कोई अप्रूवल उस पर अब नहीं है और आपको वो अप्रूवल भी लगता है, आप हमें जानकारी दें तो हम उसको ऐड कर सकेंगे। अगर उस अप्रूवल प्रोसेस में आपको किसी प्रकार की कठिनाई आई या किसी प्रकार के अफसरशाही में आपको तकलीफ आई, किसने आपको तंग किया, वैसे तो ऑनलाइन होने के कारण तंग करने की संभावना हम एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई आपकी एप्लीकेशन में, किसी ने आपसे संपर्क किया, किसी ने कोई गलत काम करने की कोशिश की और ये देश भर में लागू किया गया, तो हम उस पर भी रोक लगा पाएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, जिस प्रकार से गुजरात में हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे पाए हैं, जिस प्रकार से आज केंद्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का लाभ पूरे देश को मिल रहा है, हम चाहेंगे कि देश भर में भ्रष्टाचार मुक्त साधारण व्यक्ति के जीवन में हर एक विषय जनता को उपलब्ध हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, कि भारत के 130 करोड़ लोगों को ईज ऑफ लिविंग मिलनी चाहिए, उसको हर एक सुविधा डोर स्टेप पे मिले, सरल तरीके से मिले। उसके लिए उद्योग को यही लाभ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है। लगभग 30,000 के करीब कंप्लायंसेस को सरल किया, कई कंप्लायंसेस को एलिमिनेट किया है, लगभग 2000 कानून को समाप्त किया। हर एक कानून को राज्यों में भी और केंद्र में भी हम गहराई से देख रहे हैं कि कहाँ डिक्रिमिनलाइज किया जा सके, जिससे लोगों को एक चिंता नहीं रहे कि छोटी मोटी गलतियों के लिए उनके ऊपर कानूनी तकलीफ आएगी या कोई जेल डाल सके। और उद्योग करने वाले व्यक्ति को, व्यापार करने वाले व्यक्ति को एक रात को चैन की नींद सोने को मिले, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई चिंता के। उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, जैसे आज 75,000 भारत में स्टार्टअप्स हमारे विभाग में रजिस्टर हुए हैं, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75,000, लेकिन जिस तेज गति से आए हैं ये 75,000 मात्र 6 साल में नए स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ देश में चालू हुए हैं, तैयार हुए हैं। लाखों युवा युवती इसमें जुड़े हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे इकोसिस्टम बढ़ रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में काम के अवसर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सभी जो काम किए जा रहे हैं ये एक प्रकार से देश को एक औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए अहम भूमिका करेंगे। और उसी श्रेणी में धोलेरा, जिसकी कई सारी जानकारियां आज अधिकारियों ने भी दी, माननीय जगदीश भाई ने भी उसका जिक्र किया, और जो मेरे दृष्टिकोण से जिस प्रकार से प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विश्व की पहली बनने जा रही है, वो एक मिसाल बनेगी। आगे आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य धोलेरा अपनी टीम भेजेंगे देखने के लिए कि इसमें कैसे इतना चमत्कारी काम हुआ है। कैलाश जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो शायद पहले दिन से धोलेरा के साथ आप जुड़े रहे हो,
right from the planning stage, the initial stage of land acquisition. मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा और सभी गुजरात के अधिकारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये इकोसिस्टम क्रिएट किया कि आज देश और विश्व से लोग भारत में आके और गुजरात में विशेषकर आके काम करना चाहते हैं। मुझे बताया गया सेमीकंडक्टर की भी कई टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स आके गई हैं कि हम यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिन बहुत ही आप सब खुशनसीब हैं कि गुजरात जैसे विकास से प्रेरित प्रदेश में हैं, उद्योग कर रहे हैं और नए लोग गुजरात आके अपना व्यापार करें, अपना उद्योग लगाएं। उसके लिए धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं अभी अभी चर्चा कर रहे थे, शायद जल्द ही एक नई सरप्राइज और मुख्यमंत्री जी प्रदेश को देने जा रहे हैं। एक मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पे काम कर रहे हैं वो भी इस प्रदेश में जल्दी आने जा रही है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे आदेश था कि एक एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से निर्यात कैसे गुजरात से और बढ़े। वैसे शायद देश का सबसे अधिकांश जिन 2-3 प्रदेशों से निर्यात होता है वो आज भी गुजरात है, पर इसको कैसे और तेज गति से बढ़ाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर विश्व में देखें तो विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब अपना माल भेजते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड में अपना शेयर बढ़ाते हैं, तभी देश विकसित होते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम एक डेट तय करेंगे जिसमें निर्यात के ऊपर फोकस्ड एक आप सबके साथ और पूरे प्रदेश के उद्योग और व्यापार जगत से लोगों के साथ एंगेज करेंगे। निर्यात के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, केंद्र ने, राज्य ने, किस प्रकार से हम आपको सहयोग कर सकते हैं कि निर्यात भी देश का तेज गति से बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनकी निगरानी में बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करके 200 मिशंस विश्व भर में जो भारत के हैं उनके साथ एंगेज करके, और ऑफ कोर्स उद्योग जगत का तो सबसे बड़ा रोल रहा। पिछले वर्ष 50 लाख करोड़ का निर्यात भारत से हुआ, विच इज एन ऑल टाइम हाई। इट्स अ रिकॉर्ड $675 बिलियन। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले 7-8 सालों में इसको 675 को बढ़ा के हमको $2 ट्रिलियन तक भारत का निर्यात करना है। $1 ट्रिलियन यानी 75-80 लाख करोड़ सर्विसेज में, सेवा क्षेत्र में, और 75-80 लाख करोड़ गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। अब ये बड़ा लक्ष्य है, 150 लाख करोड़ यानी 3 गुना आज के एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है। और उसके लिए मैं आप सबका सहयोग भी चाहूँगा, आप सबका इन्वॉल्वमेंट, आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन, और उसके लिए राज्य और केंद्र सरकार जो आवश्यक हो करने के लिए तैयार है। हम तत्पर हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम करने के लिए तेज गति से काम चल रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी जल्दी आने वाली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत फोकस्ड काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा उनके नेतृत्व में मात्र 88 डेज में, 88 दिन में भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। दुनिया का, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट अगर कोई एफटीए बना है तो भारत और यूएई के बीच ओनली इन 88 डेज। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जिसको इंडस एकता के नाम से हमने करार दिया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। मैं समझता हूं वास्तव में विकसित देशों के साथ भारत एकता के संबंध बढ़ाए, यूनिटी बढ़ाए। वो ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित हो गया इंडस यूनिटी,
एग्रीमेंट, दे कॉल इट द यूनिटी एग्रीमेंट। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात देश के समक्ष रखी थी, जो 5 प्रण रखे थे, उसमें एकता और एकजुटता का भी एक प्रण रखा था। ये एकता और एकजुटता भारत में तो एक प्रकार से हर घर तिरंगा के साथ प्रधानमंत्री जी ने विश्व को संदेश दिया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो विश्व में प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई छवि है, आज अगर आप विश्व की लीडर्स के लिस्ट देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड टुडे। मेरा तो सौभाग्य है, कई इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में प्रधानमंत्री जी के साथ जब हम रहते हैं, वो देखने वाला दृश्य होता है। और आज नहीं, मैं ये 6-7 साल से अनुभव कर रहा हूँ, चाहे वो 2015 में पेरिस का COP21 एग्रीमेंट का जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज की, जिसमें प्रधानमंत्री जी वॉज द हीरो ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही हाल में जब G20 की मीटिंग हुई रोम में, मैं आपको कल्पना नहीं दे सकता हूँ किस प्रकार से एक के बाद एक विश्व का नेता प्रधानमंत्री जी से चर्चा वार्तालाप करने के लिए उत्साहित था। और G7 की मीटिंग का जो अभी अभी हुई है कुछ महीने पहले, उसका तो आपने फोटोज और दृश्य देखा ही, कैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, और वास्तव में अब G7 के मेंबर्स ना होते हुए प्रधानमंत्री जी को विशेष निमंत्रित किया। और लगभग आज माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकार करता है। और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में भारत इसी हफ्ते अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले आने वाले 25 वर्ष विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। आगे आने वाले अमृत काल में हम सब एकजुट होकर एक साथ भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लें, सब एक साथ काम करें। और मेरा विश्वास है कि 2047 में 2047 जब भारत आज़ादी का 100 वर्ष मनाएगा, तब जो दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी देश को दे रहे हैं, जो नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व प्रधानमंत्री जी देश को दे रहे हैं, इस नेतृत्व के साथ साथ भारत और भारत के 130 करोड़ लोग, हर भारतवासी एक विकसित देश का नागरिक होगा और उसके जीवन में उल्लास, उमंग और उत्साह की कोई कमी नहीं होगी। We will enter into our stage of prosperity, into the era of prosperity, prosperity for 130 crore Indians. हर भारतवासी इस prosperity का अंग होगा, हर भारतवासी एक विकास के साथ अपने आप को जोड़ेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 130 करोड़ कदम भारत आगे बढ़ेगा और भारत का हर देशवासी विकास के साथ अपने जीवन में भी उमंग उल्लास के साथ आगे एक अच्छा भविष्य देखेगा। मैं पुनः एक बार भूपेंद्र भाई का, जगदीश भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना समय भी दिया इस कार्यक्रम के लिए, और हम सबको एक धोलेरा के लिए जो आपका आशीर्वाद रहता है, जो सहयोग रहता है, उसके साथ साथ मेरा विश्वास है कि ये आगे चल के देश का सबसे विकसित, सबसे प्रोग्रेसिव स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटी बनेगी। आप सबका आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, आपकी उपस्थिति और आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए हम सभी का आपकी ओर आभार व्यक्त करते हैं।